Hello students of class ninth. I welcome you all on my YouTube channel Literary Classes. Students, today we are going to enjoy a very nice poem entitled as Wind, written by Subramania Bharti and later translated into English by a well-known poet and scholar of his age, A.K. Ramanujan. Students, today we will entertain this poem in a greater detail. This is your second poem of textbook Behind. Students, uh, before entering or jumping into the river of today's poem, let me tell you something about the poet. Actually, Subramania Bharti, as you know, has been a very well-known literary figure of Tamil language. He has contributed a lot in our independence movement and also has written many poems and suffered long for the independence of our Bharat Bhumi. He, when he used to write poems, he used to depict the traditional, the cultural, and the social background based poems. In this poem, in his Tamil language, he has written Hawa. It means after then this poem was later translated by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan himself is a very well-known and very literary Anglo-Anglian prominent figure of English literature. Let us jump into the poem. The title of the poem, you know, is Wind. As you know, this topic is well familiar for you all. The theme of the poem. Let us know first about the theme of the poem. The theme of this poem is that, like men and women, there are gods also who help only the strong people. Students, this is the opinion of the poet. Poet wants to convey us that in our society, people try too hard, people try to create problems in the lives of the weak people, those who are mentally, those who are physically or economically from any side, those who are weak. People try to disturb them, people try to loosen them, people try to hurt them. But if you are strong, if you are firm, if you are bold, then people are going to be your friend. This is the theme of this poem, Wind. Actually, you must know from the point of view of religion, gods are different and God is different. Gods are many, like wind god, as we call in Hindi language Vayu Devata, like fire god Agni Devata, like Indra Devata, like Yaksha, like Gandharvaj, like Sunny Devata. There are many gods. But God is one, that is Supreme Personality. And He is beyond any terms. He is causeless lover. But gods are not. Through this poem, the poet wants to convey us that before demanding grace, before begging grace, before asking pardons from the gods, we should make us bold, we should make us firm, we should make us steadfast mentally, economically, physically. Then what you will see that you are going to be helped by the gods. यानी कहने का तात्पर्य स्टूडेंट्स ये है इस पोयम के द्वारा, जो सुब्रमण्या जी हैं उन्होंने ये कविता तमिल भाषा में लिखी थी, वो कहना ये चाहते हैं कि मानवों की तरह ही कई ऐसे देवता होते हैं। देवता यानी भगवान नहीं, देवता जो होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन जहाँ कोई निर्बल होता है, असहाय होता है, कमज़ोर होता है, चाहे वो किसी मुद्दे पर कमज़ोर हो, उसकी बहुत ज़्यादा वो सहायता नहीं करते हैं, ऐसा कवि का मानना है। इसलिए व्यक्ति को देवताओं के दरवाजे पर जाकर के याचना, प्रार्थना, निवेदन करने की अपेक्षा उसे अपने आत्मविश्वास को, उसे अपनी शक्ति को, उसे अपने अंदर की आत्मिक
जो आत्मशक्ति है उसको विकसित करना चाहिए। और जब वो विकसित करता है तो क्या पाता है कि वही देवता जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था वो उसका सपोर्ट करने लगता है। यानी वो बड़ी अच्छी मुझे लाइन याद आती है कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर मुका के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। ये इस पूरे पोयम का थीम है। आइए सबसे पहले इस पोयम में अब आगे बढ़ते हैं। इस पोयम को आप अपने बुक में देखेंगे भी, मैं आपके सामने रिसाइट कर रहा हूँ। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. स्टूडेंट्स यहाँ पे शुरू के 11 लाइंस मैंने लिए हैं। ये जो पोयम है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विंड, बहुत अच्छी पोयम है, हमको इंस्पायर करेगी। ये हमारे आत्मशक्ति को डेवलप करने के लिए पोयम है, हमें स्ट्रांग होना है। शुरू के 11 लाइंस में जो पोयम स्टार्ट होता है, द पोयम स्टार्ट्स विद ए टोन ऑफ रिक्वेस्ट एड्रेसिंग टू द विंड गॉड। हवा के जो देवता हैं या जो हवा हैं, हवा के जो देवता हैं, वायु देवता हैं, उससे पोएट एक निवेदन करता है। उसी से ओपनिंग लाइन शुरू होती है। एड्रेसिव केस में कहता है विंड कम सॉफ्टली, कहता है कि हे वायु देवता, हे वायु धीरे आइए, धीरे बहिए। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों के आगे जो शटर्स लगे हुए हैं, उनके जो ढकने वाले कवरिंग्स लगे हुए हैं, उनको तोड़िए नहीं। क्योंकि हवा जब तेज आती, यू नो व्हेन विंड बिकम्स अ स्टॉर्म, इट डिस्ट्रॉयज, इट डिस्ट्रैक्ट्स एवरी पार्टिकल ऑफ द हाउस। तो कहता है कितना, वो कहता है कभी कि देखो देखो वायु देवता आप आओ लेकिन प्यार से आओ, इतना तेज मत चलो कि जो विंडोज हैं उनके शटर्स टूट जाएं। डोंट स्कैटर द पेपर्स, यानी मेरे कमरे में जितने भी कागज हैं ऐसा मत बहो, ऐसा ना चलो सारे बिखर जाएं। टू कलेक्ट देम, बहुत कठिन हो जाए। देखिए उस जमाने का पोयम है जब भारत में बहुत अच्छे बिल्डिंग्स नहीं होते थे, हर्ट हुआ करते थे, झोपड़ी होती थी, हाँ, कई प्रकार के सिल्ट के मकान होते थे, मड के मकान होते थे। उस कंडीशन में ये पोयम लिख रहे हैं। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, कहता है पोएट कि जो अलमीरा पे ये मेरे बुक्स रखे हुए हैं इनको बिखेरो मत। स्कैटर माने टू मूव द थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ हटा देना, बिखेर देना। टू थ्रो द थिंग्स इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, कहता है जो सेल्फ पे बुक्स हैं उनको बिखेरिए मत, उनको यहाँ वहाँ मत कर दीजिए। फिर क्या कहता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, कहता है वायु देवता क्या किया आपने, उनको देखिए आपने सारी किताबों को बिखेर दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, अपने पुस्तक के सारे पन्नों को फाड़ दिया। यानी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट करने के बाद भी वायु देवता पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने सारे सेल्फ के बुक्स गिरा दिए, सारे पन्ने गिरा दिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमोशनली फीलिंग भी आ रही है, कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट है कि ये गॉड है जो मेरी बातों को समझ सकते हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, और फिर आप बारिश भी ले आए, ठीक है ना। यानी जैसे आपने कविता सुनी है, रेन रेन गो अगेन, बहुत बारिश होता है तब नहीं चाहता है कि पानी हो, कहता फिर आप बारिश भी ले आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन, ठीक है ना। एट पोकिंग फन का मतलब स्टूडेंट्स हो गया टू बी एक्सपर्ट इन मेकिंग मॉकरी, यानी मजाक बनाने में आप बहुत ही चतुर हैं, निपुण हैं। बोले किसका, एट वीकलिंग्स, ठीक है ना। वीकलिंग्स माने वीक पीपल आर एनिमल्स, कोई व्यक्ति जो कमजोर हो, असहाय हो, दुर्बल हो। बोले जितनी चीजें दुर्बल हैं, जो कमजोर हैं, आप उनके मजाक बनाने में बहुत निपुण हैं, यानी आप उनका उपहास करते हैं, उनको बिखेर देते हैं। देखो यहाँ पे एक सूत्र भी है कि विंड गॉड किसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। फिर आगे कहता है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज,
फ्रेल का मतलब दैट कैन बी ब्रोकन इजिली, जो आसानी से टूट सके, भंगुर जिसको कहते हैं। क्रम्बलिंग हाउसेस, टूटते हुए मकान। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, बलियां। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। बोले आप जितने भी टूटते हुए मकान हैं, टूटते हुए दरवाजे हैं, टूटते हुए ये बलियां हैं, टूटता हुआ लकड़ी है, टूटता हुआ शरीर है, टूटता हुआ जीवन है और टूटता हुआ हृदय, जितने भी कमजोर टूटते हुए दिल हैं, हृदय हैं, घर हैं, मकान है, बोले आप सबको क्या करते हो, इन सब पे आप सबके जीवन पे मजाक उड़ाने में, इन कमजोर लोगों के जीवन में मजाक उड़ाने के लिए आप एक्सपर्ट हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, इन सबको आप विनोज कर देते हो, एंड क्रसेस देम ऑल, सबको पीस देते हो। आपने देखा होगा विनोविंग एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेन से चैफ को सेपरेट किया जाता है। वैसे ही जब आपकी हवा आती है ना, तो एकदम जो कमजोर लोग हैं वो बेचारे पिस के उड़ जाते हैं, उनकी सारी संपत्ति को आप उड़ा ले जाते हो, उनको एकदम तुम धूल धूसरित कर देते हो, भूसे की तरह उनके जीवन को तुम उड़ा देते हो। तो इस 11 लाइन के स्टेंजा में आपने क्या देखा होगा, द पोएट इज फर्स्ट इज इन द टोन ऑफ रिक्वेस्ट, बट द गॉड, विंड गॉड डज नॉट एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट एंड डज हिज ओन ड्यूटी, और बताता है कि अब क्या करते हैं। यहाँ से देखिए क्या कहता है सुब्रमण्य भारती, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन एक रामानुजन ने किया है। कहता है ही वॉन्ट टू डू व्हाट यू टेल हिम, व्हाट यू माने वी रीडर्स, फिर वो हमें एडवाइस करते हैं कि ही वॉन्ट टू डू व्हाट यू टेल हिम, कहता है कि वो रीडर्स आप वायु देवता से जो कहोगे वो नहीं करेंगे, मतलब विंड गॉड विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रे। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, क्या सॉल्यूशन है, अतः आओ हम एक मजबूत मकान बनाएं। जो चीज फ्रेल है, क्रम्बलिंग टाइप है, उसको हम स्ट्रॉन्ग करें, यही एक सॉल्यूशन है। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट अस ज्वाइंट द डोर्स फॉर्मली, हम अपने घर के दरवाजों को मजबूती से बंद करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अभ्यास करें कि हमारा शरीर स्ट्रांग हो, यानी हम एक्सरसाइज करें, ठीक है ना, यानी हम वॉकिंग करें, रनिंग करें, अपने बॉडी को फॉर्म करें, दृढ़ बनाएं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मतलब भी फॉर्म होता है, हार्ट माने माइंड, बोले अपने बॉडी और अपने माइंड को स्ट्रांग करें, दुर्बल न करें, अपने को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग करें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये जो विंड गॉड हैं, जो आप वीकलिंग्स थे, कमजोर थे, जो आपको सता रहे थे, अब आपके मित्र हो जाएंगे, अब आपके अच्छे फ्रेंड्स हो जाएंगे। इसका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है एफोरिस्टिक स्टाइल में, एक उन्होंने एग्जाम्पल भी 4 लाइन का दिया है लास्ट में। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। 2 लाइन का एग्जाम्पल देते हैं कि जो हवा है ना, ब्लोज आउट मैंने पुट आउट, बुझा देती है वीक फायर्स। आप लोगों ने देखा होगा छोटी सी लौ होती है और यदि हवा चले तो उसको बुझा देती है, लेकिन यदि वही आग का रूप ले ले तो वही हवा उस आग को और बढ़ाती है, यानी वही आग का छोटा सा चिंगारी है तो उसको हवा बुझा देगी, लेकिन जब वो 16 बन जाएगा, बहुत बड़ा उसका पार्ट हो जाएगा, तो वही हवा उसकी फ्रेंड हो जाएगी। तो कहता है द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, लेकिन अगर वो फायर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, बड़े पैमाने पे है, दृढ़ है, तो वो उसको रोर करता है और गर्जना कराता है, उसको और पावरफुल बनाता है, फ्लरिश उसको डेवलप भी कराता है, फैलाता है, विस्तृत करता है। इसलिए हिज फ्रेंडशिप इज गुड, मतलब विद फ्रेंडशिप विद विंड इज गुड। हवा से मित्रता नुकसानदायक नहीं है, ठीक है, लेकिन कब, जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो हमें और स्ट्रांगर बनाएगा, हमें और स्ट्रांगेस्ट बनाएगा। वी प्रेज हिम एवरी डे, और इस तरह से हम उसकी रोज अभिनंदन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल द समरी ऑफ दिस पोएम यही हुआ कि वी शुड मेक अस स्ट्रॉन्ग, हमें स्वयं को स्ट्रॉन्ग करना है। इस कोरोना के पीरियड में भी आप देख रहे होंगे, कोरोना में भी यही कंडीशन है। आपको कोरोना डराए, उसका दवा बने न बने वो दूसरी मुद्दा, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करिए। अगर आप मजबूत होंगे, कोरोना आपसे आ जाएगा।
आप ही कमज़ोर होंगे, कोरोना दवा खाएंगे तो भी काम नहीं करेगा। तो हर हाल में आपको स्ट्रांग बनना है। और स्टूडेंट्स आप स्ट्रांग कब बनेंगे? व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन यू नॉट अदर्स। अगर आप अपने पे मेहनत करना शुरू करेंगे तो आप स्ट्रांग बनेंगे। और यदि आपका टाइम, आपकी एनर्जी दूसरे पे लगेगा तो आप वीक बनेंगे। यही इसका मैसेज है। इसके बाद इस पोएम में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी थोड़ा सा मैं देख देता हूँ। व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। पूछ रहा है कि पहले स्टेंजा में विंड क्या करता है, आपने देखा होगा। फिर एक विंडोविंग का फिगर दिया, पूछ रहा है कि आपके क्षेत्र में, आपकी भाषा में इसको क्या कहा जाता है। तो रीजनल चीज़ें हैं कि आप उसको क्या कहते हैं। फिर उसके बाद है व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विंडोज। वो ये बताता है, पूछता है कि विंड गॉड किसकी विंडोविंग करते हैं, किस चीज़ को रखते हैं, किसको उड़ा देते हैं। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। अगर हम वायु देवता से मित्रता करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। पोएम में आपने स्पष्ट पढ़ा कि आपको क्या करना है, टू मेक यू स्ट्रॉन्ग। व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। इस पोएम के जो लास्ट के 4 लाइन है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर से लेकर के वी प्रेज हिम एवरी डे, इसका क्या अर्थ है, आप क्या समझते हैं। फिर उसी तरह से है आगे, हाउ डज द पोएट स्पीक टू विंड इन एंगर और विथ ह्यूमर। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। तो आपने भी कई बार वायु के रूप को देखा होगा। आपके बगल में कोई मकान जो होगा चरचरा करके, घड़घड़ा करके गिरा होगा, आपने वायु का करिश्मा देखा होगा। और फिर ऐसे ही कहता, दिस पोएम यू हैव जस्ट रेड इन ओरिजिनल इन तमिल, डू यू नो एनी सच पोएम इन ओन लैंग्वेज। जैसे ये जो आप पोएम पढ़े हैं स्टूडेंट्स, वो आपके तमिल भाषा में, संस्कृत की तरह वो एक पुरानी ओरिजिनल लैंग्वेज है तमिल। तो क्या आपने ऐसी कोई कविता अपनी भाषा में यदि पढ़ा हो तो उसका भी जिक्र करें। ओवरऑल आपको ये पोएम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एंजॉय आप किए होंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उसको मेंशन करिए। आई होप आपने ये पोएम एंजॉय किया होगा। फिर अगले वीडियो में आपको दूसरे लेसन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक ओके, थैंक्स।